For the 2023 main examination, as we are attempting our test series, we are attempting the expected nature of the question. We all will agree that there is no possibility for us to get on with what is called selective approach of preparation, but there are certain topics which has not been given their due representation in the last examination, and that is what I want all of us to add apart from the test questions and the model answers provided to you. I'm also giving you the outline of from where you can easily take out the content that you require to have in case you are not having it. So the first thing that I want to talk about is from geomorphology. And as I take reference of geomorphology, the first thing that I have to mention that you all must take to your stride and prepare is the deformation. When I am taking reference of deformation, I am taking the account of the strain. And mind it, when we are taking up this particular topic, it goes in what I call the hidden topic of our syllabus. It is in the book number 4, page number 29, where you can easily mark up page number 29 onwards. You can easily mark up the content from deformation. डिफॉर्मेशन में पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और डिफॉर्मेशन की जब आप बात करते हो, it actually correlates with the tectonic forces where we are talking about both faulting and folding. मतलब you have to be very comfortable with all the constituents and the landform features that are related to folding and folding. So ये एक पहला पॉइंट है जो हम बहुत इंपॉर्टेंटली एम्फोसाइज करना चाहते हैं. आपको पहले बता चुके हैं, it can be correlated with the deformational outcome, or it can also be correlated with what are the landform features that we can correlate with it. So the landform features that we can develop up with folding and faulting का categories को demarcate out करना है, इसलिए हमने लिख दिया page 29 onwards. You must take that into account. So geomorphology में एक पहला topic जो आपको बहुत insisted way में तैयार करना है वो हो गया आपका deformation. After that we are taking up a very important paleomagnetic studies. So नंबर 2 पर लिख ले रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म को हम स्पेसिफिकली एम्फोसिस नहीं दे रहे, हम पैलियोमैग्नेटिज्म पर दे रहे हैं. And that is the reason in your test 1 I talked about the revival of continent drift theory with the paleomagnetic study as the question. ये आपको बुक नंबर 4 में पेज नंबर 50 ऑनवर्ड्स मिल रहा है. तो हम एसेंशियली आज बुक नंबर 4 की ही बात कर रहे हैं, तो बार बार उसके बारे में बात नहीं करेंगे. इट्स पेज 50 ऑनवर्ड्स. आपको जब जियोमैग्नेटिज्म की बात करनी है तो विलियम गिलबर्ट का मेंशन लेकर चलना है. विलियम गिलबर्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद जीके गिलबर्ट. जीके गिलबर्ट को आप रेजुवनेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो टुडे. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पैलियोमैग्नेटिज्म, आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय रनकॉन एंड दूसरा द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज़. हमने फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज़ का क्वेश्चन पूछा था आपसे टेस्ट 1 में, और उस समय भी आपको एम्फोसिस करके दिया था दैट वी वेरी क्लियरली एक्सपेक्ट अ पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम जियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म मोर स्पेसिफिकली. दिमाग में हमेशा रखोगे कि रनकॉर्न का जो कंट्रीब्यूशन है that actually goes with revival of continent drift theory. When you are taking up Runcorn's का approach and revival of continent drift theory, आप basically term ले रहे हो जो आपके NCERT में लिखा हुआ है. It is apparent north magnetic polar wandering. So you have to take that to your stride. और जब आप Fredwine and Matthews का reference लेते हो, you are taking it up with zebra string. So be very cautious that when you are being advised to revise geomagnetism and paleomagnetism, जियोमैग्नेटिज्म में तो डेफिनेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म को लेते ही आप 3 रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेंगे एंड टास्क इज डन. बट व्हेन यू आर गेटिंग ऑन टू द पैलियोमैग्नेटिज्म, यू हैव टू टेक रनकॉन, फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज. आफ्टर राइटिंग दिस, इफ आई जस्ट स्क्रॉल द पेजेस, 50 पेज ऑनवर्ड्स आपको बताया, तो आप नोटिस करेंगे जियोमैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड विद द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड इक्वेटर, एंड यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ डिटेल्स ऑफ देम. सो आई हैव गॉट द डिटेल्स विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बहुत जरूरी है, एंड प्लीज डोंट मिस टू सी. It is with paleomagnetism that thermoremanent and depositional remanent evidences to be mentioned on, and then and that is the reason I've written page 50 onwards.
and then you get on to the paleomagnetic study, which is your focus. So kindly concentrate. I'm talking about the paleomagnetic records, which is correlated with both thermoremanent and depositional remnant evidences. And on page number 54 of our book number 4, you have got Runcorn's contribution, which is talking about the apparent north magnetic polar wandering, and you can justify Labrador, Cambrian, Jolan and Verkhoyansk mountain justified है. बहुत comprehensive coverage आपको definitely help करेगा. और Fredwine and Matthews का contribution आपको page 55 में with the zebra strip that has been applied. तो मेरी बहुत sincere advice है कि आप इसको justify करें, बिकॉज माउंटेन बिल्डिंग पर 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चैनल मॉर्फोलॉजी और स्पीलियोथर्म पर पूछा हुआ है. तो आई थिंक दैट द पॉसिबिलिटी दैट गोज अप इज विद डिफॉर्मेशन एंड इट इज डेफिनेटली विद पैलियोमैग्नेटिज्म. इसके अलावा आपको जो टॉपिक अपने एम्फेसिस पॉइंट पर लेना है उसको एसोसिएट करना है वुल्केनिसिटी. अच्छा, वुल्केनिसिटी इज व्हाट आई एम डिराइविंग as the third important topic that you should revise as the expected question. वुल्केनिज्म और वुल्केनिसिटी में डिफरेंस नहीं है, बट वुल्केनिज्म और वुल्केनो में डिफरेंस है. हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बना रखा है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. बुक सेम है, पेज नंबर 82 ऑनवर्ड्स है. इसमें बहुत एम्फोसिस दे रहे हैं हम वोल्केनिक एमिशन इंटेंसिटी पर. VEI पर आपको टेस्ट 1 में क्वेश्चन भी दिया है. आई डोंट नीड टू एम्फोसाइज कि दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आई कैन एनकाउंटर एनीथिंग दैट इज कोरिलेटेड विद वोल्केनिज्म. अब आपको जस्टिफिकेशन क्या करना है एज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, जिसमें शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जामिनेशन में, फ्रियाटिक इजेक्शन एंड दी हजार्ड रिलेटेड. दूसरा हो सकता है वोल्केनिक लैंडफॉर्म फीचर्स. तीसरा हो सकता है एसोसिएटेड इजेक्टेड मैटर, है ना. तो आपको बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है. एंड व्हेन यू आर टेकिंग अप द लैंडफॉर्म फीचर, एक जो हम बड़ा कॉमनली मिस आउट कर देते हैं, जो वोल्केनिक पाइप है उसको मिस आउट नहीं करना. दैट इज कोरिलेटेड विद पा होए होए एंड आ. ये टर्म्स जो हैं ये हवाईयन आइलैंड से आते हैं, इसलिए बड़ा टिपिकल साउंड करते हैं. मतलब एवरीथिंग, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन योर फाइनल रिविजन व्हेन इट कम्स टू वोल्केनिज्म. As I've written, so just scrolling the page here, वोल्केनिज्म या वोल्केनिसिटी पेज नंबर 82 ऑनवर्ड्स है, बता दिया. VEI का रेफरेंस दिया है, मॉडल आंसर में आपको डायग्राम भी बताया है, नो क्लास नोट्स में आपके पास है. सारी डिटेल्स ऑफ हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, विसुवियन टाइप, पीलियन टाइप, you have to take that in. And when I'm taking up the reference of Vesuvian, Pillenian, तो ये diagrammatic representation with examples by default. और जैसा आपको बता रहे थे that you should be taking, you are not just supposed to take ejection type, landform feature भी. तो Pillenian टाइप जिसमें Martinique, Krakatoa का रेफरेंस देकर, और उसके बाद you take up the demarcation of other types. So VEI को आप hydrothermal vents, phreatic and phreatomagmatic. So be very cautious, phreatomagmatic ही volcanic में जाएगा. Phreatic और hydrothermal vent is non-magmatic. तो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा whether you should write it or not. So page number 82 onwards, take the reference of it if you require the content. And then it is phreatic emissions, जिसमें geysers, fumaroles, hot water spring. So it is giving you a complete content, and it is advisable that if you are running out of content, you don't have, because हम earthquake की तो intensity वगैरह की बड़े आराम से बात करते हैं, रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल, बट व्हेन इट कम्स टू वोल्केनिज्म हम इतनी नॉर्मली इसके बारे में बात करते नहीं हैं. तो यू हैव टू टेक अप दैट. एंड दिस फ्रियाटोमैग्मेटिक, जिसमें क्राकाटोआ का एग्जांपल बहुत बढ़िया है, डायग्राम बेस्ड बना दिया. अच्छा, जब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर 92 में लिखवा रखा है हमने, कोन्स एंड एसोसिएटेड फीचर, लावा प्लेट्यू, लावा ट्यूब्स एंड टनल्स, इसी के बारे में बात कर रहे हैं. Don't miss it out on that, right? And then you have got the information that you can easily scroll up. अच्छा, इसके बाद हम जो एक because if you see the question paper 2022, channel morphology भी है, speleotherm भी है. तो जो exogenetic forces का कैटेगरी आएगा ना, वहाँ पर हम आपको बता रहे हैं. So geomorphology में जो आपका प्रायोरिटी टॉपिक नंबर 4 होगा, वो होगा rejuvenation. And mind it, when you are taking up the revision of rejuvenation,
रेजुवनेशन को हम डायरेक्टली टेस्ट पेपर में अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में पॉसिबली कर देंगे। तो रेजुवनेशन को जब आप रिवाइज करो, विच इज़ गोइंग ऑन पेज 134 ऑनवर्ड्स, आपको क्या करना है, आपको रेजुवनेटेड कंपोनेंट में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजुवनेशन के बारे में रिविजन लेना है, because we talk about rejuvenation normally as negative only. You have to understand that it has to go with positive as well. तो दोनों चीज़ें, and once you are done with it, then you are taking up the reference of topography of discordance, second cycle of erosion, polycyclic landform, है ना, ये सारे टर्म्स को आपको अपने राडार पर एक फाइनल रिविजन पर लेना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेलेक्टिव तैयारी नहीं करनी है, सेलेक्टिव रिविजन करना है, तैयारी सारे टॉपिक। तो एंट्रेंच टोपोग्राफी ऑफ डिस्कॉर्डेंस, एंट्रेंच्ड मीएंडर, ग्रैंड कैनियन, वैली इन वैली टोपोग्राफी, सारी चीज़ें आपके नोट्स में हैं, आप इसको रेफरेंस पे ले सकते हो। एंड देन आई हैव एम्फसाइज्ड इन जियोमॉर्फोलॉजी नंबर 5 एंड फाइनल, बहुत टाइम से रेफरेंस में नहीं आ रहा है, इसलिए ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन। एंड माइंडेड, जब आप ग्लेशियल साइकिल पढ़ते हो तो ग्लेशियल टोपोग्राफी भी तो पढ़ते हैं, है ना। तो मतलब जब आप रिवीजन कर रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी में, तो एक बेसिक फोकस ले लीजिए, दैट यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ ग्लेशियल साइकिल, यू आर आइडेंटिफाइंग ग्लेशियल टोपोग्राफी, एंड इट शुड बी एवरीथिंग। It should be everything when I say I take what is glacier, what is meant by glacier mass, what kind of movement it is correlated with, what are the activities or action that glacier generates as an erosive agent. उसके बाद you are taking up the features. Features में आप horn and coal को separate out करो. Take up the difference between the till, the glacial till deposit. क्योंकि basket of egg topography के बाद glacier पर आया नहीं है ना. सो आपको ये पूरा जो है ग्लेशियल टोपोग्राफी एंड ग्लेशियल साइकिल एडवाइस किया है। सो ग्लेशियल साइकिल पेज नंबर 139 ऑनवर्ड्स है, यहाँ पर लिख दे। सो पेज 139 ऑनवर्ड्स चलेंगे आप। जब पेज 139 ऑनवर्ड्स आप जा रहे हो तो यू आर गेटिंग ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, एंड व्हेन आई गेट ऑन टू पेज नंबर 145 आई एम गेटिंग ऑन ग्लेशियल टोपोग्राफी। तो मतलब आपके पास एक पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एंड एज यू मस्ट हैव सीन every point of possibility, lateral moraine, medial moraine, end moraine, you are taking up all of them. You are also justifying on the basket of eggs topography without wash plane, so that is important. जब आप basket of egg topography एक reminder तौर पर लेते हैं तो you are taking up the domain of the blunted and the tapering end which is an, ठीक है, तो ये आपका हो गया। and please don't miss to see continental glacier का भी demarcation है। So I think these are the 5 important points that you should follow. जो हम exogenetic forces के बारे में बात करते हैं as priority, तो rejuvenation and glacial cycle मेरे ख्याल से काफ़ी significant edge है जो आपको add करना चाहिए। If I get on to our principal block number 2 of physical geography climatology, तो 2022 में मुझे questions मिले pop pollution dome पर, which is very clearly the urban climate से related question है, air masses पर question आया, एंड देन दी एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट टेम्परेचर पर बड़ी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहा है। तो हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जब फाइनल रिवीजन पिकअप करें तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर एटमॉस्फेरिक सर्क्यूलेशन, एंड माइंडेड हमने पूरा एक अम्ब्रेला टर्म ले लिया, एटमॉस्फेरिक सर्क्यूलेशन पर फोकस करना। एटमॉस्फेरिक सर्क्यूलेशन में ट्राई सेल्यूलर मेरीडियोनल सर्क्यूलेशन डेफिनेटली आपके राडार पर होना चाहिए। You have to take into account the jet streams, minded jet streams का index, jet stream का weather effectivity, अभी बहुत मेजरली न्यूज़पेपर में आया है ना एटमॉस्फेरिक स्ट्रीम, उसका भी जस्टिफिकेशन लेकर जज करना चाहिए। Added to it, you should talk about the planetary winds, the monsoonal winds and the local winds. अच्छा, इसमें आपको टेक्निकल पार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। एटमॉस्फेरिक सर्क्यूलेशन व्हेन यू आर टेकिंग इनटू रेफरेंस, डू टेक जियोस्ट्रोफिक एंड ग्रेडियंट विंड का डिमार्केशन। अब इसमें आपको एक बहुत बड़ा बल्क ऑफ सिलेबस बताया, काफ़ी टाइम हो गया है, वी आर नॉट बीन गिवन प्रोमिनेंस टू इट। एयर मासेस पर भी क्वेश्चन आए हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हम नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको आपको बुक नंबर 4 से ही उठाना है, and it is page number 225 onwards. Whenever you are having the dearth of the content,
आई हैव रिलीज द बुक्स दैट इज हैंड रिटन नोट्स, आई एम कॉलिंग इट बुक्स. आप उसका प्लीज सपोर्ट ले लीजिए सो दैट यू डोंट रिग्रेट व्हाइल यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल. अब पेज 225 ऑनवर्ड स्क्रॉल करें तो ध्यान से देखोगे, एडवेक्टिव मूवमेंट, फोर्सेस रेगुलेटिंग एडवेक्शन विद प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस, फ्रिक्शनल ड्रैग, सबके बारे में मेंशन है. देन यू आर टेकिंग अप द डिमार्केशन ऑफ प्लानिटरी विंड्स. सो एडवेक्शन में प्लानिटरी विंड्स का मूवमेंट प्रोफाइल. And then, as I said, we need to take into reference tricellular meridional circulation. Tricellular meridional circulation को judge करने के बाद you are taking up the distinction between gradient and geostrophic wind. It is on page number 234. And then you are proceeding further, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा topic है, मतलब you are covering on quite significant constituent. तो आप देखेंगे कि हम jet streams और jet streams के index which is largely related to the polar jet stream के बारे में भी बात कर सकते हैं आराम से. And then the monsoonal mechanism. इस फ्लो चार्ट पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो. monsoonal mechanism में thermal concept, ITCZ concept, MONEX monsoonal expedition with role played by Tibetan Plateau, role played by vortexes, Somali jet, teleconnection with ENSO, teleconnection with Indian Ocean Dipole, and teleconnection with the Madden-Julian oscillation. You know, you have everything. और यहाँ से एक बार कंटेंट डेवलप कर लें. बी वेरी क्लियर, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द कंटेंट. आप कंटेंट जानते हो, आप आंसर बना लोगे. आपको कंटेंट ही नहीं पता तो आंसर कहाँ से बनाओगे. एंड व्हेन यू आर लर्निंग इट एज रोट मॉडल, आंसर को याद करके चले जाओ, तो हु इज़ गोइंग टू गिव यू गारंटी कि ये वाला क्वेश्चन आएगा. ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है. So as I continue, this is all monsoonal mechanism, mascarene high surface wind pattern, everything role played by vortexes with Malabar and Utkal vortexes. You have it all. Teleconnections में Walker cell modified, everything. And then we are also having our local winds with depression, descending winds. इस flow chart से आप एक बड़ा base category of local winds create कर लेते हैं, and then you can put it into. अगर examiner मुझसे पूछे what are local winds and how it is influencing the climatic conditions, we have encountered the question about local to regional level of climate. You are in the position of answering it, and you must attempt it that way. ठीक है, सारा Harmattan, dust devils, everything coming up there. ये अच्छा. The second thing that I advise all of you to take into consideration is number 2. I'll write it here, and this is related to atmospheric moisture. मतलब आप नोटिस करो कि हम मेजरली फोकस करने के लिए कह रहे हैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के रिविजन में एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. जब आप एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बात करें तो यू टेक इनटू अकाउंट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, एंड ऑल्सो ऑल द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, all forms and types of precipitation, and very clearly humidity and its measure type. Nutshell, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, आप पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को रिवाइज कर रहे हैं. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए. लेट मी राइट इट हेयर. इट बिगिंस फ्रॉम पेज नंबर 260. आप अपने आप ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज को जज कर लो. 225 से लेकर 259 तक आपका चल रहा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इलैबोरेटली कवर्ड. इवेपोरेशन, पोटेंशियल इवेपोरेशन पर क्वेश्चन मुझे 2015 में पूछा गया, उसके बाद मुझे क्वेश्चन नहीं आया. उसके बाद 2018 में रोल ऑफ इवेपोरेशन करके क्वेश्चन पूछा था, बट पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द वाटर बजट ऑफ अ गिवन एरिया करके क्वेश्चन. And after 2018, I am actually not incorporating the question which is directly relating from atmospheric moisture. So I think it is having a due representation for long, and that is the reason advising you. Page number 260 onwards से atmospheric moisture को आगे लेकर बढ़ोगे तो आपको सारा evapotranspiration, potential evapotranspiration, measures of humidity रिवाइज करेंगे इसको. Unsaturated, saturated, supersaturated air column, कंडेंसेशन फॉर्म्स, ऑल दी वेरिएंट्स लाइक फॉग के सारे वेरिएंट्स को हम स्टडी करते हैं. एडवेक्शन फॉग, फ्रंटल फॉग, प्रेसिपिटेशनल फॉग. जब आप क्लाउड की बात करते हैं तो आप कन्वेंशनल पर नहीं रुकते. यू टेक इनटू अकाउंट द 10 न्यू जेनरा क्लाउड्स को तो एज इट इज़ मेंटेन किया हुआ, पर WMO ने एक स्पीशीज क्लाउड कॉल वोलुटस, एक एसेसरी क्लाउड कॉल फ्लूमन, supplementary cloud in 5 categories: Cauda, Espirita, Fluctus, Cavum and Morus.
and special cloud as selva genita, cataracta genita, phlegma genita and homo genita. आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए. As climatologist we do believe in that, है ना. अच्छा, उसके बाद जब आपने क्लाउड्स के बारे में बात कर लिया तो प्रेसिपिटेशन पढ़ते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेन ड्रॉप फॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द कोलिजन एंड कोलेसेंस एंड बर्जेरॉन प्रोसेस, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. काफ़ी टाइम हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पर क्वेश्चन है. प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स फॉर्म्स रेनफॉल, हेल, स्नोफॉल, स्लीट, लेस एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. कंटिन्यूटी में इसी पेज में आपको पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा. सो पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए आप कहाँ जाएंगे? प्रेसिपिटेशन पैटर्न टू 324 पेज. पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जब हम आपको कह रहे हैं ना दैट यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू मस्ट रिवाइज एवरीथिंग, तो पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन मुझे कंटिन्यूटी में नहीं, हम कोपन्स क्लासिफिकेशन के बाद उसको पढ़ते हैं. तो वी हैव गॉट द प्रेसिपिटेशन जोन्स ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड एज 7 और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. प्रेसिपिटेशन जोन इज अ जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेटिक स्कीम. आप उसको कोपन्स क्लासिफिकेशन से डिराइव आउट कर सकते हो, बट कोपन्स क्लासिफिकेशन इज एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियरली रखना कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू रिवाइज, आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हो. अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं. पिछले कुछ सालों में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम में मुझे जो एकदम जिसको कहते हैं सबसे रिसेंट एग्जाम्पल मिला, वो मिला 2019 में थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन स्कीम. तो एक एडवाइस ज़रूर दे देंगे क्लाइमेटोलॉजी के रिविजन में, एंड इट प्रिसाइजली कम्स अप इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम, and you can find it on the page number 310. So I want all of you to take up, I use another page, I want all of you to take up revision number 3. एक ना जो एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम्स है ना, उसके बारे में एक रिविजन ले लीजिए, क्योंकि एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम में कोपन्स क्लासिफिकेशन हमने क्वेश्चन पूछा टेस्ट में, आपको मॉडल आंसर भी शेयर कर दिया. इसका आप रेफरेंस पिकअप कर लें बुक 4 से ही, पेज नंबर 310 से, क्योंकि कोपन्स क्लासिफिकेशन में जो एम्पेरिकल स्कीम है दैट गिव्स यू मैक्सिमम डोमेन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. तो जब आप ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ कोपन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर डन विद व्हाट इज कॉल्ड त्रिवार्थास क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो मेंशन इन आवर सिलेबस. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है दैट आई एम अवेयर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. आई कैन ईजिली कोरिलेट विद द डिफरेंट प्रेसिपिटेशन एंड क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो बेसिस ऑफ कोपन्स क्लासिफिकेशन भी पिकअप कर लेना एंड क्लाइमेटिक रीजन्स भी पिकअप कर लेना, एंड यू हैव गॉट अ कंप्लीट डिटेल्स कमिंग पेज नंबर 310 ऑनवर्ड्स. ये पूरा अल्फाबेटिकल सिंबल्स ऑफ कोपन्स क्लासिफिकेशन स्कीम एंड ऑल द कैटेगरीज ऑफ द क्लाइमेट, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, E टाइप एंड H टाइप ऑफ क्लाइमेट, सारा. आ रही है बात समझ में? सो जो आपके 2 पिलर्स हैं ना फिजिकल ज्योग्राफी के, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, आपको ड्यू रिप्रेजेंटेशन तो हमने दे ही दिया है टेस्ट में, मॉडल आंसर भी आपने ले लिया है. आप कोशिश करो कि इस हाईलाइटेड पॉइंट को रिविजन में लें. हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर देंगे ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को हम रिलेट कर देंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से. आपने एग्रीकल्चर का टेस्ट दे दिया है, इंडस्ट्री का देने वाले हो, उसके बारे में भी, क्योंकि एनवायरनमेंट बेसिकली कोरिलेट्स विद एवरीथिंग दैट यू आर हाईलाइटिंग. तो जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात भी करेंगे तो भी एनवायरनमेंट है, CPCB की बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में तो भी एनवायरनमेंट है. तो दैट बेसिकली गोज हैंड इन हैंड. तो कंटेंट की दर्द फील हुई तो प्लीज़ टेक दिस पार्ट 4 ऑफ द क्लास नोट्स, और नहीं फील हुई है, यू हैव द कंटेंट, तो कोशिश करो कि जो हमने टॉपिक्स बताए हैं उसके साथ रिविजन लें. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रॉन्गर अपर एज देन योर कॉम्पिटिटर्स. बाय बाय फ्रॉम माई साइड.